Okay, online students, hope I'm audible. Everyone? Okay, chalo. So, hope we have made or not? मिले हैं हम लोग? नहीं? First time ही है? Everyone? Okay. अभी चेहरा याद रखना क्योंकि लास्ट में आप मेरे पास ही आने वाले. मतलब कहा? कहा? लास्ट में आने वाले हो मतलब? Exactly. Right? So, my name is Swapnali and I'm heading the placement department of First Bit Solution. Okay? So please थोड़ा सा ध्यान देखिए because this is a crucial part. I think सब उसी के लिए इंतजार करते हैं. Right? So, before starting, can you give offline introduction to me? एक करके कि आपका नाम क्या है, क्वालिफिकेशन और कॉलेज कौन सा है. ठीक है? कहाँ से स्टार्ट करें? एंड से? Jain College. Okay. Just one minute. Online students, you can drop me on the chat box. Sakshi, chat box पर photo काटो. Okay. Next. You are from? Shirpur. Okay. And from where you have passed out the? कहाँ से किया है? कहाँ से? Sorry. Okay. ठीक है. Next. Last year में हो? Okay. Okay. आप सब लोग जैन के हो? Okay. TBG. Okay. Hello ma'am, my name is Vishwari. I am from Gujarat. I am currently pursuing my BTech in Computer Science and Technology at Shivaji University College. Okay. शिवाजी युनिव्हर्सिटी. कॉलेज कुठला? Department of Technology, Shivaji. Okay. Hello, my name is Rob. I am from Secretary Sam. I am currently pursuing from Shivaji. Okay. I'm pursuing BTech in Computer Science from Shivaji Sharada Institute. Okay. I'm from Sandu. I'm pursuing my engineering from Shivaji Institute of Technology. Okay. Hello, ma'am. My name is Neha. I'm from Gujarat. I'm currently pursuing my computer science and technology. Hello, ma'am. Good morning. I'm going to support my master's degree in Princeton from Sayyidabazi College of Engineering. Hello, ma'am. My name is Kushika Rangavi. I'm studying BTech in data science from the University. Okay. My name is Pariksha Bhattacharya. I'm from Kerala. And I'm qualified in my bachelor's from the University College of Engineering and Management. And in computer science. Okay. My name is Jekwa Ashutoshi, and I have completed MBA from GSI Centre. Okay. I am from India, and I have completed from Australia. Hello, myself Vicky. I am from Samajnagar and I have completed my master's in computer science from the University. Okay. I'm right now I'm pursuing my BTech IT from Working Institute of Technology, Solapur, and I'm from Engineering. Okay. My name is Aditya Surabhi. I'm pursuing MCA, Wholesale, and from Chhatrapati. Okay. Hello, my name is Ricardo from Sangi, and I am currently pursuing BTech in Computer Science and Engineering at SXU. At? At SXU. Okay. And myself, today I'm pursuing a degree in BTech English from Chhatrapati University. Good morning, my name is Shabir. I'm from Sukunti. Seriously, from study Sukunti. Okay. साक्षी बस लिस्ट करे चालू कर दीजिए. I see Vishal Gadi. I am from Kabra. I have
I have completed with it. Okay. I need to feel about it. And from my I have completed my graduation degree. Sir, college from Pune University. Hello, myself Afsar College. I am from Karnataka. I have completed my diploma from Navi Mumbai College. तेरना तेरना कॉलेज मुंबई Navi Mumbai. नवी मुंबई I completed graduation thesis and currently I'm pursuing my master's. ओके So my mind is from program. I am currently pursuing comparing I remember that I am currently pursuing and ओके Okay. So, online student, yes, I have taken a photo of you, so I will check it out. Reason ये था पूछने से कि आप कितने लोगों का डिग्री कंप्लीट है, कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड है क्या, तो उनके लिए वापस से रिज्यूम बिल्डिंग या फिर अलग से करना पड़ता है. तो मोस्टली यू आर फ्रॉम ऑल आर फ्रॉम सीएसआईटी बैकग्राउंड है, राइट. बहुत लोग परस्यूइंग है, तो पास आउट ये 2026 होगा, राइट, या 2027 वाले हैं. कितने लोग हैं? 26, everyone. That is great. Okay. So coming back, जैसे आपने एडमिशन ली होगी तो आपको बताया होगा कि ये अनलिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स है जब तक आप प्लेस नहीं होते हो, राइट. क्लियर है ये सबको, राइट. उसके साथ आपको इंटर्नशिप भी दी जाएगी. क्लियर है. तो इंटर्नशिप का पार्ट मैं आगे बता दूंगी, लेकिन फिलहाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेसमेंट होने के बाद भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, राइट. तो उस वक्त आप क्या करोगे? आप यहाँ से एडमिशन लिए, कोर्स हो गया, प्लेस हो गए, और वापस अगर 1-2 महीने में प्रॉब्लम आ गया कंपनी में, क्योंकि बहुत बार आप क्या वर्ड सुन रहे हो फिलहाल मार्केट में, और ले ऑफ, राइट. तो वैसा कुछ हुआ तो आप क्या करोगे वापस से, राइट. सो देयर इज वी हैव लॉन्च आधार शक्ति फॉर दैट, कि जो स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं लेकिन आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो अगेन वी आर देयर टू गिव यू आधार कि क्या कर सकते हैं उस वक्त. तो थोड़े से मैं ओवरव्यू नहीं बताऊंगी, जस्ट जो मेन पार्ट है वो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे. जो एक्सप्लेन करूंगी वहीं पे उसी के बेसिस पे मैंने सिर्फ डिस्क्रिप्शन लिखा है. सो वी विल गो विद द मेन पार्ट. स्लो का होता है. अच्छा, ठीक है. सो दिस इज द मेन पार्ट जो बेसिकली आपको जानना जरूरी. ओके. सो आपका कोर्स कितने महीने का? 6 मंथ. 80% सिलेबस होने के बाद आप प्लेसमेंट के लिए आओगे. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो वैलिडिटी देखिए कि 1 जनवरी को आपका कोर्स स्टार्ट हुआ, राइट. खत्म कब होगा? 30 जून. जून में खत्म होने के बाद आप इंस्टेंट प्लेस हो जाओगे क्या? यू विल टेक टाइम. कभी कभी किसी का रिवीजन नहीं होता है, किसी के मार्क्स देने पेंडिंग है, या फिर किसी के घर में कुछ इमरजेंसी है, फिर 1-1.5 महीना होने के बाद आप आ जाते हो प्लेसमेंट, या फिर 3-4 इंटरव्यू हो गए लेकिन फिर भी क्रैक नहीं हो रहा है, रिवीजन की जरूरत है वापस से. तो ये सब कुछ पकड़ के वी विल कंसिडर 30 जून को आपका कोर्स खत्म हुआ है और आपका ज्वाइनिंग आ गया 1 सितंबर को. ठीक है. स्टिल वी आर गिविंग 2 to 3 मंथ. ओके. 1 सितंबर को ज्वाइनिंग होने के बाद आपका यहाँ पे अगर आप ज्वाइन हो गए और 3 महीने के बाद आपको ऐसे लगा कि अभी कंपनी में प्रोजेक्ट ही नहीं है और आपको बेंच पे बिठाया, तो वो एक्सपीरियंस काउंट होगा क्या? नो, राइट. जब हम लोग कंपनी वेरीफाई करते हैं तब इतना डिटेल्स में हम लोग इंटरनली भी नहीं जा सकते कि कितने प्रोजेक्ट्स है कितने नहीं. हाँ, प्रोजेक्ट्स है या नहीं है वो वेरीफाई करते हैं,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2-3 महीने के बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, तो क्या करोगे? तो अगर ऐसा सिचुएशन है देन यू कैन कम अगेन टू द प्लेसमेंट टीम, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। सिर्फ आप जा रहे हो बेंच पे बैठ रहे हो तो उससे एक्सपीरियंस आने वाला है क्या? आगे जाके आप क्या बताओगे? पैकेज था लेकिन एक्सपीरियंस था क्या? नहीं। प्रोजेक्ट पे काम किया है कि नहीं? तो फिर आगे के इंटरव्यू में आप क्या इंटरव्यू दोगे, राइट? सो ऐसे सिचुएशन में भी आप प्लेसमेंट के पास आ सकते हो। इसकी वैलिडिटी कितनी है? 1 ईयर। मतलब जब से आप ज्वाइन हुआ है उससे 1 ईयर तक आप लोग वापस प्लेसमेंट में आ सकते हो। 1 ईयर लगेगा कि आपको, अगर आप 3 महीने में इंटरव्यू क्रैक करके ज्वाइन करके वापस आ रहे हो तो वापस से आपको 1 साल लगेगा ज्वाइन होने में? लगता है आपको? नो। सो आई थिंक दिस इज इनफ टाइम कि आपको वैलिडिटी दी गई है, राइट? अभी इसमें भी इतने सारे सिचुएशन है, आप मुझे बताओ, यहाँ पे तो मैंने शो कर दी है लेकिन फिर भी मैं वापस पहुंचूंगी। आपको क्या लगता है कि कौन से सिचुएशन में आपको हेल्प लगेगी? सबसे पहले तो मैंने ही बोला कि प्रोजेक्ट ही नहीं है और आपको बेंच पे बिठाया है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है। तो दैट टाइम यू कैन कम टू मी कि मैम प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, मैं बेंच पे ही हूँ तो दूसरा जॉब मैं देख रहा हूँ, तो वी विल अगेन गो विद द प्लेसमेंट प्रोसेस। और कौन से सिचुएशन में आपको लग रहा है आपको प्लेसमेंट सपोर्ट कब लगेगा? हम्म आप बोलोगे वहां पे एसी नहीं है, चाय की कॉफी का मशीन नहीं है, फिर मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके वजह से थोड़ी मैं जॉब दूंगी वापस से, राइट? नो। हम्म ओके। और किसका? कंपनी का? हाँ, आपका आपका परफॉर्मेंस नहीं है मतलब क्या है? मतलब क्या? इफ योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड मतलब क्या? कहाँ कम गिर रहे हो आप? किसमें? कंपनी का प्रॉब्लम है, पॉजिटिव सॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, या आपका प्रॉब्लम है? तो फिर ऐसे कितने कंपनीज होंगी और आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो फिर वापस आओगे आप? वापस मैं दूंगी फिर वापस आओगे? ऐसा कितना दिन चलेगा? ओके। ओके गुड। सॉरी। ओके, पढ़ लिया। पढ़ लिया। हाँ। और एनीथिंग? हम्म ओके, सो वी विल गो विद द रीजन। सबसे पहले पेमेंट और नॉन टाइम, ठीक है? जस्ट आपको एक प्रोसेस बताती हूँ कि जब भी आपके पास फर्स्ट से जॉब पोस्टिंग आएगी तो माय टीम गोज टू द कंपनी प्रीमाइसेस, फोटोज निकालती है, फिर आपको जॉब पोस्टिंग करते हैं। सो वी डू अ वेरिफिकेशन कि सच में कंपनी वहां पे है क्या, कितना स्टाफ है, कंपनी 1 BHK में है या 1 RK में है या 2 BHK में। तो जब भी जॉब पोस्टिंग आती है तो आपको वहां पे फोटोज भी दिखेंगे कि कंपनी ऐसे ऐसी है। तो दैट इज अगेन अपॉन यू कि आपको वहां पे अप्लाई करना है या नहीं करना है, दैट चॉइस इज यू। ठीक है, कितना भी वेरीफाई किया फिर भी कंपनी के क्लासेस बता के नहीं आ सकते, राइट? तो आपको मैंने वेरीफाई कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप अगर वहां पे ज्वाइन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, पेमेंट ही टाइम पे नहीं आ रहा, तो आप काम करोगे क्या? नहीं करोगे। सो अगेन यू कैन जस्ट गेट कॉन्टैक्ट इन टू द प्लेसमेंट टीम कि पेमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है मैम, एक बार चेक करो। तो मैं वापस से कंपनी से बात करूंगी, अगर सॉर्ट आउट हो रहा है तो दैट इज फाइन, नहीं हो रहा है तो आई विल आस्क यू टू कम अगेन एंड वी विल गो विद द प्लेसमेंट। ठीक है, सो ये पहला रीजन हो गया। सेकेंड, ले ऑफ। जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ले ऑफ कर रही है, तो मिड लेवल भी कर सकती है। तो ले ऑफ में कंपनी कितनी भी वेरीफाई की है मैंने, आपने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेकिन ले ऑफ ही हुआ तो कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। तो वापस यू कैन कम अगेन हियर फॉर द प्लेसमेंट। ठीक है। थर्ड रीजन इज नो प्रोजेक्ट, जो कि मैंने पहले ही बताया कि आपको लिया और आपको सिर्फ बिठा के रखा, तो वी डोंट वांट दैट टाइप ऑफ वर्क, क्योंकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। फोर्थ इज नो पेमेंट। पेमेंट नॉट ऑन टाइम एंड नो पेमेंट मतलब पेमेंट ही नहीं दे रहे आपको बता के, तो उस वक्त भी आप आ सकते हो। इसको छोड़ के और कुछ रीजन लगता है? यस, जैसे जैसे बताया, परफॉर्मेंस नॉट गुड एंड यू आर टर्मिनेटेड। लेकिन वापस आई विल आस्क यू क्वेश्चन कि ऐसे कितनी सारी कंपनीज है जहाँ पे आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है फिर भी रखने वाले हैं? एनी कंपनी यू नो? नो वन। तो
वो आप ही सोचिए कि आपको कितनी बार उस लेवल पे आना है, क्योंकि जब आपको कंपनी टर्मिनेट कर रही है तो वो वेरीफाई करेगी, दूसरी कंपनी तो क्या बताएगी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इसलिए निकाल दिया। सो अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू, इस बात पे कभी मत आना, ट्राई टू बी अच्छे ही आना, क्योंकि आगे जाके वेरिफिकेशन के वक्त बहुत बार कंपनीज वेरीफाई करती है एचआर के साथ, तो अगर आपको परफॉर्मेंस बेसिस पे निकाले तो क्या करेंगे। हाँ, पहली बार निकालते डोंट वरी, वी विल गिव अगेन योर रिवीजन। प्लेसमेंट प्रोसेस पे आने के पहले भी जहां जहां आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है, वहां पे दिक्कत आ रही है, तो वी विल आस्क ट्रेनर्स टू हेल्प यू, रिवीजन देने के लिए बोल देंगे और वापस आपको मॉक होने के बाद वापस प्लेसमेंट के लिए देंगे। ये सब रीजन छोड़ के और कोई रीजन लगता है आपको कि जहाँ पे प्लेसमेंट का सपोर्ट होना चाहिए? ऑफिस में लड़कियां ही नहीं है मैम तो मन नहीं लग रहा है। जैसे इसने बोला कि लड़कियां बोले कि मैम लड़के अच्छे ही नहीं है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता, राइट। आई थिंक शारदा के कॉलेज के है ना, तो आपको तो आदत है स्ट्रिक्ट में रहने की, शरद इंस्टीट्यूट, राइट। राइट, आई नो योर कॉलेज वेरी वेल, ठीक है। इसके पहले के बैच के भी स्टूडेंट्स थे, अभी लेटेस्ट एग्जाम प्लेस हुआ है आप ही के कॉलेज का, तो आई नो मतलब उन्होंने क्या क्या मुझे बोला है, तो आई थिंक यू हैव अ हैबिट टू गो विद दैट, राइट। बाकी कॉलेजेस तो इतने नॉर्मल है लेकिन आपका ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, राइट। सो आई नो वेरी वेल, तो ये सब रीजन के लिए नहीं होगा। फिर मैं करवे नगर रह रहा हूँ और कंपनी हिंजोड़ी है मैम, बहुत पैर दर्द हो रहे हैं बस चेंज कर करके, नहीं होगा। लोकेशन सबको पता है, वी आर हायरिंग फॉर पैन इंडिया, क्योंकि आईटी कंपनीज मोस्टली मेट्रो सिटीज में ही है, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, गुजरात, हैदराबाद, इतने ही। इंटरव्यूज ऑनलाइन होते हैं, ज्वाइनिंग आपका ऑफलाइन होता है। रिसेंट में 2 स्टूडेंट्स हो गए गुजरात लोकेशन के लिए, 4.5 का पैकेज दिया, तो कंपनीज आर टू गुड, लेकिन आपका भी उतना स्किल्स होना चाहिए, राइट। दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्किल्स। आप बोलोगे मैंने क्लास लगा दिया अब मेरा प्लेसमेंट हो गया, नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू तो आपको देना है, राइट। कितना भी मैंने प्रिपरेशन करके लिया, ट्रेनर्स ने प्रिपरेशन किया, एट लास्ट यू हैव टू क्रैक द इंटरव्यू, ठीक है। डन, इसमें कोई डाउट है? एवरीवन ओके विद दिस? कुछ डाउट्स? ऑनलाइन स्टूडेंट्स यू कैन जस्ट चैट मी ऑन द चैट बॉक्स अगर कुछ डाउट है तो, राइट। अब ये सब कुछ हो गया तो इसमें और एक पॉइंट तो आएगा ही ना, कौन सा वाला? कौन सा वाला? नॉन सपोर्ट, यस, गुड। एब्सकॉन्ड और रिजाइन का डिफरन्स क्या आहे? मराठीत सांगितलं तरी चालतं बघ. एक्झॅक्टली, और रिजाइन मतलब? यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस वर्ड, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सकॉन्ड होना मतलब बिना बताए ही आप छोड़ गए, तो दैट विल नॉट कंसिडर, राइट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी में आप सिलेक्ट हो गए हो, मुझे भी बताया नहीं, कंपनी को भी बताया नहीं, और आप घर बैठ गए, सो दैट आई विल नॉट कंसिडर हियर। रिजाइन दे रहे हो खुद से तो वो भी कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो वैलिड रीजन चाहिए। अगर इन सब चीजों में से है देन दैट इज फाइन, लेकिन इन चीजों में से नहीं है, आप ऐसे ही बोल रहे हो कि इधर मुझे 20,000 मिल रहा था, मुझे अभी 30,000 की चाहिए इसलिए मैं रिजाइन दे रहा हूँ, सो दैट विल नॉट कंसिडर, क्योंकि ये बनाया ही इसलिए कि आपको सपोर्ट मिले। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे इसने बोला कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो कंपनी ने निकाल दिया, तो आप वापस मार्केट में जाओगे, प्लेसमेंट एजेंसी ढूंढोगे या वापस एक क्लास करोगे, वहां से प्लेसमेंट होगे, पैसे कितने जाएंगे आपके, राइट। सो दिस वी हैव कंटिन्यू फॉर दैट रीजन। और जैसे कि मार्केट सिचुएशन अभी फ्लक्चुएट हो रही है तो स्टूडेंट्स बहुत सारे को प्रॉब्लम हो रहा है, सो फॉर दैट रीजन वी हैव स्टार्टेड हियर। लेकिन आप बोलोगे एक महीना मैंने यहाँ पे किया, दूसरा महीना वहां पे कर रहा हूँ, तो वो नहीं चले। डन, ओके, एनीथिंग एल्स? यहाँ तक क्लियर है आपको सब? बाकी के राइट, जस्ट वो क्राइटेरिया वगैरह लिखा है, उसकी इतनी जरूरत नहीं है। मेन पार्ट था वही मैंने बताया, दिस वाज द मेन पार्ट। सेकेंड थिंग आई विल से कि ये किस लिए चालू किया वो भी बताती हूँ। बहुत लोग अलग अलग लोकेशन के हैं, अपने मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट देखे होंगे कि जहाँ पे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि फीस 1 लाख के आगे है और फिर वो प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं। अगेन वी विल से वी डोंट गिव गारंटी, बट वी गारंटी से ज्यादा ये आधार शक्ति है, क्योंकि गारंटी वापस बोलूंगी, कौन गारंटी लेगा कि अगर आप इंटरव्यू के रूम में गए और वहां पे कुछ बोला ही नहीं आपने, तो ऐसे कौन गारंटी लेगा, राइट। तो अगेन आई विल से कि जब तक आप प्लेस नहीं होते हो, दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट प्लेस। लेकिन वो भी दोनों तरफ से चाहिए, आपने अगर पढ़ाई ही नहीं की तो आप इंटरव्यू भी कैसे क्रैक करोगे, राइट।
तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि 1 लाख के ऊपर फीस है, फिर वो कहीं पे लगा देते हैं। मतलब ये सब क्वेरी स्टूडेंट से ही आई है। तो वहां पे 3 महीने लगा देते हैं, 3 महीने की सैलरी मिल जाती है और वापस निकाल देते हैं। आई डोंट नो हु इज डूइंग इट, लेकिन ये स्टूडेंट से ही क्वेरी आ गई थी। तो अगेन वी हैव स्टार्टेड विद आधार शक्ति कि ऐसा कुछ होता है तो आप वापस आ जाओ। फीस लेने वाले हैं क्या? नहीं लेने वाले। दिस इज अगेन अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इट्स ओनली टू सपोर्ट आवर स्टूडेंट्स। ठीक है। दूसरी एक बात है, जब भी आप प्लेस होते हो तो सुपरबिट करके ग्रुप है हमारा एल्यूमिनी का, तो वहां पे आपको ऐड किया जाता है। तो आफ्टर 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद अगर आपको लग रहा है कि चेंज करना है, तो यू कैन जस्ट एड, यू वर एडेड इन द ग्रुप, तो वहां पे भी हम लोग एक्सपीरियंस की ओपनिंग पोस्ट करते हैं। सो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ठीक है। तो दिस आर द सपोर्ट सिस्टम फॉर द प्लेसमेंट स्पेसिफिकली। दूसरी बात, एवरी वीक प्लेसमेंट की मीटिंग होगी आपके शेड्यूल में ही। 15-20 मिनट्स वी विल गो विद द प्लेसमेंट। स्टार्टिंग से ही आपका रिज्यूम बिल्डिंग, लिंक्डइन, इंडेड, जो भी पोर्टल होंगे वो आपको सिखाया जाएगा, पूरा अपडेट किया जाएगा। क्योंकि जब आपका सिलेबस खत्म होता है उसके बाद अगर हम लोग प्लेसमेंट के लिए स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाता है। ओके। और बीच बीच में ड्राइव्स भी आती है जावा पाइथन दोनों में। तो ऐसा होता है कि कभी कभी प्लेसमेंट को बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, तो उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि यस वी कैन डू इट, तो आप उसमें आ सकते हो वो ड्राइव के लिए। लेकिन प्लेसमेंट के लिए आपको 80% सिलेबस खत्म होने के बाद ही आना पड़ेगा। क्योंकि जब भी मैं कंपनी को कहती हूँ तो उनको सर्टिफिकेट चाहिए रहता है कोर्स कंप्लीशन का। तो आपका पहले मंथ में तो कोर्स कंप्लीशन नहीं होगा। तो जहाँ पे कंपनी ऐसे है कि बेसिक्स पे इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इन दैट केस आई विल पोस्ट द जॉब ओपनिंग इन योर ग्रुप एंड यू कैन अटेंड दैट ड्राइव। ठीक है। और अगर प्लेस हो जाते हो देन यू कैन कन्वर्ट इनटू ऑनलाइन भी तो लेक्चर्स है, रिकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप ये कर सकते हो। अभी किसी ने कैंपस ड्राइव दी है क्या कॉलेज से? एनीवन? 2026 स्टूडेंट्स? कंपनी आई नहीं कॉलेज में? कौन सी कंपनी? इट वॉज इनटू आईटी बेस्ड और मतलब आईटी बेस्ड? कौन से राउंड, कितने राउंड थे? आपने कितने दिए? 2 दिए। ओके। बाकी आप? सेम ही। ओके। हम्म। हम्म। है। ओके। और कोई भी नहीं? कॉलेज में ड्राइव नहीं हुए आपके? नहीं हुआ है? हुए? कौन से हुए? कौन सा? एग्जाम का हुआ। और तो क्या हुआ? राउंड क्रैक नहीं हुआ? ओके। ठीक है। सो धीरे धीरे वी विल गो विद दैट ऑल्सो। आपको कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, अगेन आई विल से बहुत सारी कंपनीज कम्युनिकेशन चेक करती है, तो सॉफ्ट स्किल के सेशन मिस मत करो। क्लियर है? प्लीज डोंट मिस द सॉफ्ट स्किल। जब आप प्लेसमेंट के लिए आते हो तब आपको लगता है सॉफ्ट स्किल किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कंपनी का पहला राउंड ही कम्युनिकेशन राउंड होता है। राइट। सो एटलीस्ट एक्सप्लेन करना आ सके इतना तो इंग्लिश आपका होना चाहिए। आई नो टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी लगेगा। इंटरव्यू मराठी और हिंदी में नहीं होता है यहाँ पे। क्लियर है? तो एटलीस्ट उतना तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। साइड बाय साइड जब प्लेसमेंट की मीटिंग होगी वी विल गो विद एवरीथिंग। हर किसी का इंडिविजुअल रिज्यूम मैं चेक करूंगी। हर किसी का रिज्यूम सेम नहीं होना चाहिए, कॉपी नहीं मारना है कोई भी। हर किसी का रिज्यूम अलग ही होना चाहिए। फॉर्मेट वापस कहती है, फॉर्मेट में नहीं दूंगी, आइडियाज दूंगी कि ये चाहिए, नहीं तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। फिर वहां पे मेल लिखा होता है तो लड़कियां भी मेल ही कॉपी कर देती है, वो भी चेंज नहीं होता है। सो दैट आई विल नॉट डू। सो बहुत हंसते हो आप लोग, लेकिन वही लिखते वही करते हो, तो इसलिए इंडिविजुअल रिज्यूम चेक होगा। ठीक है। इंडिविजुअल हम लोग रिज्यूम बनाएंगे हर किसी का। जावा के होंगे, पाइथन के कितने स्टूडेंट्स है यहाँ पे? जावा पाइथन मिक्स है। ओके। तो हर किसी का डोमेन वाइज वापस कीजिए। जब आप प्लेसमेंट के लिए आते हो जावा का डोमेन अलग है, पाइथन का डोमेन अलग है, डेटा साइंस, तो हर किसी के ग्रुप्स अलग हो जाते हैं। पोस्टिंग जो भी होती है वो कॉमन नहीं होती है। जावा वालों को जावा ही, पाइथन वालों को पाइथन ही, डेटा साइंस वही। ठीक है। वो मिक्स नहीं होता है एज पर द कॉलेज। कॉलेज में एक कंपनी आती है सबको आ जाती है, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। हर किसी के डोमेन के हिसाब से ही आपको ओपनिंग मिलेगी। ठीक है। सो आई विल गिव यू 5 मिनट्स। जस्ट रिकॉल, कुछ पूछना है आपको? एनीथिंग डाउट, एनी क्वेरीज प्लेसमेंट रिगार्डिंग? मैं तो अच्छा ही बोलूंगी, स्टूडेंट अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मैं वो बोलूंगी। कंपनीज जैसे आपके प्लेसमेंट मीटिंग में आती हो
इफ यू आर ऑन द लिंक्डइन पेज तो लिंक्डइन फॉलो करो फर्स्ट बीट का, ओपनिंग्स हर ओपनिंग्स का जेडी वहां पे मैं डाल देती हूँ, तो एक बार चेक कर लो आप, क्योंकि उस हिसाब से आपको प्रिपेयर होना चाहिए। जावा वालों को वापस कहती हूँ, C++ प्लीज पढ़ो, LMS थ्रू दिया जाएगा शायद से आपको, लेकिन C++ पे भी ओपनिंग ज्यादा है, जो 4 से 5 लाख तक पैकेज दे रही है। कोर जावा पे है, एडवांस जावा पे है, SQL डेवलपर है, डेटाबेस है, तो बहुत सारे लोग हैं सेम। They are only looking for your attitude, body language and technical skills. Coding, आप लोग थेरी अच्छा कर लेते हो, लेकिन कोडिंग कोडिंग में प्रॉब्लम है। तो स्टार्टिंग से आप कोडिंग करो, थेरी तो आप बाय हार्ट कर लोगे, क्योंकि वो कॉलेज की आदत होती है रट्टा मारने की, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं, कोडिंग ही करने के लिए थे। जितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, मैं 4 बार उनको वही पूछती हूँ, तो कोडिंग करने के लिए कहते हैं, कोड लिखने के लिए बोलते हैं, अलग अलग वेब से लिखने के लिए बोलते हैं। सेम ही कोड होता है जो यहाँ पे पढ़ा लेता है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर देता है। सो आई विल सजेस्ट, प्रैक्टिस करो, मॉक का तो बताया होगा, मॉक की प्रैक्टिस करो। मॉक इज ओनली फॉर योर कॉन्फिडेंस बिल्टअप, बाकी कुछ नहीं। अगर आप मॉक क्लियर कर रहे हो मतलब इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, मॉक ही क्लियर नहीं कर रहे हो तो आप, जैसे कि एग्जाम आप दे रहे हो तो एग्जाम की ओर पढ़ाई करते हो तो पास होते हो, पास नहीं हुआ है मतलब आपने पढ़ाई ही नहीं की। सेम गोज टू द मॉक, मॉक इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। सो काइंडली मॉक मिस मत करना। बहुत लोगों का मॉक के वक्त सर दर्द शुरू हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, टेम्परेचर आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन डोंट डू, क्योंकि अभी आप कॉलेज में नहीं हो, आपने यहाँ पे पैसे भरे हैं, सो यूटिलाइज दैट इनटू द प्रॉपर वे। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मॉक नहीं दिए, फिर इंटरव्यू में ब्लैंक हो जाते हो, दैट इज अगेन अ डिफरेंट। इसलिए तो मॉक स्टार्ट किया है कि एटलीस्ट आप प्रेजेंटेशन देते वक्त इंग्लिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वेदर यू आर एबल टू एक्सप्लेन और नॉट, राइट? सो प्लीज गो टू दैट। और अगर इन केस आपको कहीं से जॉब ओपनिंग अभी आ रही है और आपको लग रहा है इस कंपनी में इंटरव्यू, टॉक टू मी। अगर मेरा रेफरेंस है तो पर्सनल लेवल पे भी मैं रेफरेंस लगा दूंगी। अगर कुछ क्वेश्चंस है, मुझे पता है ये कंपनी क्या पूछती है, तो वो भी कर दूंगी, राइट? लेकिन इंटरव्यू होने के बाद मत बताओ, पहले ही बताओ, राइट? क्योंकि बहुत बार 2026 के स्टूडेंट्स हो आप, तो कॉलेज से भी आपको ओपनिंग आएगी, नौकरी पैसे भी आएगी, अगर कहीं पे आपने अप्लाई किया वहां पे भी होगी। तो अगर कहीं पे इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, टॉक टू मी। 3 to 4 का वीडियो है आपके ग्रुप पे, आता है क्या प्लेसमेंट विंडो का इमेज? आता है? सब लोग ब्लैंक है, देखा ही नहीं है। बहुत सारे इमेजेस आते हैं, कहाँ देखो मैम, डाउनलोड चला जाता है ना? ऐसे मत करो, देखो। या फिर आई सीट ऑन, मतलब जहाँ पे मेरा लोकेशन है वर्क लैब करके, वहां पे पूरी प्लेसमेंट टीम बैठती है, तो प्लेसमेंट टीम के पास आप आ सकते हो। कुछ भी डाउट है, यू कैन कम टू मी एंड टॉक टू 1 to 1। अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मेरी टीम रहती है, मोस्टली मैं रहती ही हूँ, एवरी वीक दर्शन होंगे एक दूसरे के हमें, लेकिन होंगे। लेकिन अगर इंटरव्यू शेड्यूल है, प्लीज टॉक टू मी। अगर कुछ रेफरेंस है, क्वेश्चन है जो प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो भी मैं दे दूंगी, ठीक है? डन? एनी डाउट्स? गैप है, डोंट वरी। कितना है? 23 एंड 21। मैं आपसे इंडिविजुअली बात करती हूँ, पर्सनल, ठीक है? एनीथिंग एल्स? किसी को और कुछ है? ईयर गैप वगैरह? मैंने 12th किया, फिर 2 साल आराम किया, फिर इंजीनियरिंग किया, ऐसा कोई है क्या? नो वन? नथिंग? किसी की मेडिकल इमरजेंसी थी इसलिए गैप है, ऐसा कोई? No, I will again say we are having a balance on that, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट ऐसे आता है जो नॉन IT बैकग्राउंड के भी है, किसी का 10th और 12th में क्राइटेरिया मतलब परसेंटेज नहीं है, तो वी आर हैविंग बैलेंस। दोनों कंपनीज आती है अपने पास, तो जहाँ पे क्राइटेरिया है वहां पे भी हम लोग कन्विंस करते हैं। इसलिए तो बोलती हूँ मॉक दो, क्योंकि मॉक इज हार्डेस्ट टूल फॉर मी, क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, तो मैं HR को कन्विंस करते वक्त बताती कि हमने इतने सारे मॉक लिए। तो अगर स्टूडेंट का परसेंटेज नहीं है लेकिन वो टेक्निकल अच्छा है, तो उसको एक चांस तो दे दो। फॉर दैट रीजन वी हैव केप्ट द वर्क। इतना प्रॉब्लम नहीं आता, डोंट वरी। 2021-22 के हो रहे तो परसेंटेज और इसका गैप का इतना इशू नहीं आता, ठीक है? सिर्फ प्रॉब्लम कभी आता है कि एक आधी कंपनी अगर नहीं बोल रही है उनके क्राइटेरिया, तो फिर नहीं। एक दो कंपनीज होती है कि जो क्राइटेरिया चेंज नहीं करती है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। कितने लोगों का 10-12 का प्रॉब्लम है, 60% नहीं है? तुम्हारा ही है ना फिर? शर्मा क्यों रहे हो? हाँ तो हाँ,
बाकी सबसे शर्मा, लेकिन प्लेसमेंट से कोई मत शर्मा, क्योंकि वही लास्ट स्टेज है जहाँ पे मैं कन्विंस हो सकती हूँ। और कोई है जिसका 60% नहीं है 10th-12th में? ओके, और बाकी सबके तो बार क्लेवर जिस जनवरी से अच्छी बैच मिली है, मतलब मुझे सबके 60%। ग्रेजुएशन को नहीं, किसी को नहीं है, ऐसा कोई है क्या? एनीवन? बैकलॉग्स? हमारा पावर भी है, पाइथन, एसक्यूएल, हाँ आगे ही। हाँ? हम्म, नाही नाही कसं करणार? मी तेच सांगते, बेसिक्स म्हणजे काय, जे की तुमच्या कॉलेजमध्ये झालेलं आहे. तर आता या 2026 पास आउट आहेत, राईट? तर त्याच्यावर एक्झाम येते, कॉग्निझंट येते. सो बेसिक जे काही सिलेबस मध्ये झालंय त्या बेसिस जर कंपनी आली तर तुम्हाला अलाउ करणार. तुम्हाला येतच नसेल तर कसं करायचं? आता मी तुला विचारलं डेटा सायन्स तर येणार आहे का? जर तू पायथॉनचा असशील आणि डेटा सायन्सची कंपनी असेल तर तुला येणार आहे का इंटरव्ह्यू देता? नाहीच आहे ना. म्हणून तर नाही म्हणते ना. बेसिक्स म्हणजे काय, जे कॉलेजच्या सिलेबसवर झालेलं आहे. आता कधी कधी असं होतं, फॉर एक्झाम्पल जावावाले कोर जावा झालं त्यांचं, तर कोर जावाच्या बेसिसवर तर हे इंटरव्ह्यू देऊ शकतात आरामात. दे कॅन गिव्ह. सेम गोज टू पायथॉन. पायथॉनचा जो काही सिलेबस झाला असेल, कुठपर्यंत आला असेल, तेवढ्या सिलेबसवर जर माझ्याकडे जेडी मध्ये ती ओपनिंग आली तरच मी देते. ठीक आहे, कारण एव्हरीवन नोज की एकदा रिजेक्ट झाल्यावर किती महिने तुम्ही ब्लॉक होता त्या कंपनीसाठी? 6 months, minimum 4 to 6 months. So we don't want to block the companies because of just to give the interview. आपल्याला प्लेसवर टार्गेट करत आहे. इंटरव्ह्यू कॉल्स आर नॉट अवर टार्गेट इज टू गेट प्लेस, राईट? का कोणाचं आहे इंटरव्ह्यू काउंटचं टार्गेट कोणाचं? नाही ना, की फक्त इंटरव्ह्यू काउंट वाढवायचा? राईट, ओके. एनिथिंग एल्स? राउंड डिपेंड कंपनीवर. 3 किंवा 4 तर मिनिमम असतात, कधी कधी 3 असतात. काही काही वेळेस आपल्याकडं मोस्टली, आय विल नॉट से गॅरंटी, बट 99% कंपनीज जिथे ऍप्टिट्यूड घेतली, ते स्टार्ट विथ द टेक्निकल राउंड अँड कम्युनिकेशन राउंड. बट स्टील 1% इज देअर, दे डू द ऍप्टिट्यूड. म्हणून तर आपण एक्स्ट्राचे सेशन सॉफ्ट स्किल आणि ऍप्टिट्यूड लावले, की ऍटलीस्ट त्याच्यात रिजेक्शन नको. टेक्निकल रिजेक्ट झालं तर काहीतरी वाटतं की हा इथे प्रॉब्लेम आहे, पण तुम्ही कम्युनिकेशन आणि नॉर्मल बिहेवियर साठी रिजेक्ट होत असेल तर प्रॉब्लेम आहे. सो वी टेक दॅट ऑल्सो. पण सेशन्सला येणं तुमचंच काम. सेशन्स लावायला तर लावतात, पण येणं तुमचं काम. सो सॉफ्ट स्किल्स, अगेन आय विल रिक्वेस्ट यू, डोंट मिस सॉफ्ट स्किल्स. सॉफ्ट स्किल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्लेसमेंट झाल्यावर तुम्हाला कळतं की नाही करायला पाहिजे. डोंट डू दॅट. ओके, एनिथिंग एल्स? Okay, so henceforth, internship and all, I will start with the next meeting. सगळं लाईन अप करून टाकू की इंटर्नशिप कशी होणार आहे, काय होणार आहे. आय थिंक राईट नाउ युअर सेशन्स आर गोइंग ऑन, बेसिक सेशन्स. गो विथ दॅट. ठीक आहे, एनिथिंग मोर डाउट अबाउट दॅट? एनिथिंग एल्स? बट अगेन येस, आय विल से की जस्ट टू गिव एग्जाम्पल, डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ. कि कोई नॉन आईटी अगर है और किसी का गैप है, तो ऑब्वियसली जो फ्रेशर्स की ओपनिंग होगी तो वो तो ज्यादा होगी, राइट? मतलब 2026 पास आउट अगर कह रहे हैं, उनको 8 ओपनिंग आ रही है, तो जिसका प्रॉब्लम है सीवी में या रिज्यूम में, तो उसको थोड़ा सा रेशियो कम होगा. तो आप ये कंपैरिजन नहीं कर सकते हो कि फ्रेशर है उसको 10 मिले तो मुझे 2 ही क्यों मिले. सो यू हैव टू कीप पेशेंस ऑन दैट, क्योंकि हर किसी का रिज्यूम अलग है. प्लेसमेंट होगा क्या? यस होगा, क्योंकि कंपनीज बहुत सारी आती है. तो वी ट्राई टू एडजस्ट इनटू दैट. नॉन क्राइटेरिया वाली भी कंपनी आती है जहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग परसेंटेज कुछ नहीं देखा जाता, वो सिर्फ टेक्निकल देखा जाता है. लेकिन वापस कहती हूँ कि आपको 2026 से कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रेशर है, 2026 चालू है, तो उनके ओपनिंग्स तो ज्यादा ही आएंगे. लेकिन अगर गैप है, परसेंटेज का इशू है, या परसेंटेज का इशू भी इतना नहीं है, सिर्फ गैप वालों का, तो थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, बट कीप पेशेंस. ठीक है, एनीथिंग एल्स? कुछ डाउट? 1.5 से लेकर 4.53 लाख. अभी जस्ट एग्जांपल देती हूँ. बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बैच करते हो, आपको खुद को पता चलता है कि मुझे कोडिंग नहीं आ रहा है, राइट? तो वो स्टूडेंट का क्या करे? तो हम लोग उनको नॉन आईटी में नहीं भेजते, फिर इंटर्नशिप के लिए ट्राई करते हैं, जहाँ पे पेड इंटर्नशिप है कि 6 महीने लाइव प्रोजेक्ट पे काम कर
तो तुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा, और उसके बाद वापस से वो पेरोल पे भी लेते हैं। तो हर किसी का बजट अलग अलग होगा। अगर सच में टेक्निकल स्ट्रांग है तो द कंपनी स्टार्ट्स विद डायरेक्ट पेरोल, और अगर नहीं है, इंटरव्यू अगर अच्छे नहीं किया, तो दे टेक ऑन द प्रोबेशन पीरियड और ट्रेनिंग पीरियड। तो ट्रेनिंग पीरियड में मोस्टली अभी कंपनीज का पैटर्न हुआ है कि स्टाइपेंड देते हैं और उसके बाद रिवाइज करते हैं। बहुत सारे कंपनीज डायरेक्टली देते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नो? शैल आई टेक लीव? ओके, चलो। Oh, which are anything online? Layoff skills. Okay. Any doubts, online students? You can just message me on the chat box. I will talk to you one to one. Yes, no, कुछ तो टाइप कीजिए. Questions which are the answer दिले. बाकीचे. काय झालं? Yes, online. I'm audible. आवाज आ रहा है मेरा? Yes, questions है कोई प्लेसमेंट रिलेटेड जो भी questions है इकडे तो पूछो. So ma'am will answer all your questions. फिर बाद में टेक्निकल चीज पे डिस्कस करूंगा पूरा. सो जो भी तुम्हारे डाउट्स है, जो भी छोटा मोटा जो भी कंसर्न है वो पूछो, कमेंट करो. अगर कोई डाउट है तो, नहीं है तो देन वी विल स्टार्ट विद टीएसएससी. लास्ट 2 मिनट्स कमेंट्स करो, फिर तब तक मैम है यहाँ पे अवेलेबल. तीन वाजता से ना, ठीक है. Nothing? Chalo then. Bye bye. Take care. Good day. See you in the next meeting. Thank you. Yes, it is starting. Fine.
Yes, audible. Online. Yes, ma'am. Okay. Just give me 2 minutes. All doubts regarding placement clear है? So now I'll be explaining TSSC. आज कोई टेक्निकल पार्ट नहीं होगा, इसकी क्लियरिटी होगी तुम लोगों को, क्योंकि बोथ पाइथन एंड जावा बैचेस आर टुगेदर. ठीक है. So I'll be discussing on one framework. So उससे पहले तुम मुझे बताओ कि फ्रेमवर्क क्या होता है. What is framework? Yes. तुम्हें क्या पता है फ्रेमवर्क के बारे में? क्या क्या? रेडीमेड सॉफ्टवेयर. रेडीमेड सॉफ्टवेयर कैसे? नाही नाही, असं कसं? 50 कोणी डिसाइड केलं? 50 का आकडा किसने डिसाइड किया? 50%. 50% तुम्ही करा, 50% आम्ही करतो. फ्रेमवर्क, predefined library which make task easy. हाँ. Yes. और framework is used to development, web development. Okay. Again. तुम्हाला जे माहिती है ते आंसर करा. मैं कुछ ऐसे बोल नहीं रहा हूँ कि पता है होना चाहिए. तुम्हें क्या पता है? What you know about framework? फ्रेमवर्क के नाम बताओ. स्प्रिंग बूट है. यस. क्या क्या? बूटस्ट्रैप है, जैंगो है, फ्लास्क है. यस. और हाइबरनेट है, जावा है, पाइथन है ना? क्यों नहीं है? जावा नहीं हो सकता फ्रेमवर्क? है? नहीं है? नहीं है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो फ्रेमवर्क क्या है फिर? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो होता है. फ्रेमवर्क मतलब ऐसा कुछ कोडिंग से रिलेटेड है क्या हर बार? तो ये फ्रेमवर्क के बारे में सुना है क्या तुमने? हैव यू हर्ड अबाउट दिस फ्रेमवर्क? नहीं, बिकॉज ये हमारा फ्रेमवर्क है. ठीक है. और इसमें कोई कोडिंग नहीं है. नॉट नीडेड कि फ्रेमवर्क मतलब हमेशा कोडिंग वाला ही पार्ट होता है, या कोई स्प्रिंग बूट या जैंगो यही हो रहा है. ठीक है. तो वो तुम्हें समझाना है. आज का एजेंडा क्या है कि रिफंडेड बाकी है तुम्हारा, तो उससे पहले फर्स्ट बिट क्या क्या प्रोवाइड करता है, यहाँ पे क्या क्या है वो तुम्हें समझाना है.
so that you can take your decision. ठीक है? तो एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि कंटेंट तो यूट्यूब पे भी है, ठीक है, फिर हमने यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ना है, फर्स्ट बिट से क्यों पढ़ना है? तो इसका आंसर है दैट वी टीच विद अ फ्रेमवर्क जिसका नाम है TSSE. ठीक है, वी विल स्टार्ट. So TSSE is the name of that framework. So framework, why framework? Because it provides टाइम बचाता है तुम्हारा. रिलेट करके बताऊंगा, चाहिए तो तुम्हें स्प्रिंग बूट से या जैंगो से, जो भी है, क्या मिल रहा है तुम्हें? टाइम बचा रहा है. मतलब पहले से ही बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह वाला कोड करके रखा है, तो तुम्हें वो कोड करने की जरूरत नहीं है. वो सपोर्ट मिल रहा है. प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर वेल एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर है उनका, राइट. सिक्योरिटी पता है कि वेल सारी चीजें हैंडल करके रखी है. कम्युनिटी सपोर्ट है, डॉक्यूमेंटेशन है, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी है, और ऑलरेडी टेस्टेड है. तो ये पार्ट है फ्रेमवर्क. तो जैसे मैंने बोला जावा भी तुम्हें प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज देता है ना. फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? कलेक्शन फ्रेमवर्क क्यों बोल रहे हो उसको? क्योंकि इट इज हैविंग ऑलरेडी डिफाइंड क्या, अरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सारा क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, सारे फंक्शंस अवेलेबल है. फिर वो बोलता है एम्प्लॉय के साथ काम करना है, स्टूडेंट के साथ करना है, दैट यू डिसाइड. हम तुम्हें सारा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके रख रहे हैं ना. तुम्हें बनाने की जरूरत है क्या? डेटा स्ट्रक्चर हम हमारा खुद का बना सकते हैं. बट वो बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हम ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम उसको बस यूज करो. तो तुम्हें फोकस किस पे करना है? तुम्हें फोकस करना है तुम्हारे लॉजिक पे, या जो भी तुम्हारा टास्क है, जो भी कॉमन चीजें हैं सब लोगों के लिए, वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं. सो दैट इज योर TSSE फ्रेमवर्क. एंड TSSE स्टैंड्स फॉर, उसमें हम प्लानिंग का TSSE 50%, एग्जीक्यूशन का TSSE 50%. सो TSSE stands for team, strategy, system, environment, training, skills, support and efforts. So ये कोर्स में तुम्हें इतनी सारी, ये सारी चीजें मिलेगी. ऑनलाइन आई एम ऑडिबल? आवाज प्रॉपर आ रही है? स्क्रीन दिख रही है ना सबको? कमेंट्स करो. ओके, तो इतनी सारी चीजें मिलेगी. अब जब वो क्वेश्चन आता है कि यूट्यूब से क्यों नहीं पढ़ना, बिकॉज यूट्यूब इज नॉट प्रोवाइडिंग यू TSS. ये सारा काम तुम्हें खुद करना पड़ रहा है. यूट्यूब पे अगर जाते हो तुम, तो टीम भी तुम्हें ढूंढनी पड़ रही है, स्ट्रैटेजी भी तुम्हें प्लान करनी पड़ रही है, सिस्टम, इन्वायरमेंट, राइट. यूट्यूब तुम्हें क्या दे रहा है? ट्रेनिंग दे रहा है. वन मतलब इसमें का जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है वो तुम्हें यूट्यूब भी प्रोवाइड कर रहा है, हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट. लेकिन व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, स्किल्स, व्हाट अबाउट सपोर्ट? सपोर्ट में क्या है यूट्यूब के पास? कमेंट्स में डालो, फिर वो बंदा कब रिप्लाई करेगा तुम्हें, राइट. सो वी विल गो विथ वन पार्ट, जिससे तुम्हें बहुत सी चीजें क्लियर करवा के दूंगा. तो इन टीम यू विल बी गेटिंग, टीम में तुम्हें क्या मिलेगा? टीचर्स, को ट्रेनर्स, मेंटर्स एंड पीयर्स. तो टीचर और मेंटर में क्या डिफरेंस होता है? हाँ बराबर है ना, क्या गलत है उसमें? गाइड करेंगे ना. यस. टीचर क्या करता है? ट्रेन करता है. मेंटर क्या करता है? गाइड करता है, राइट. को ट्रेनर्स, एवरी बैच इज हैविंग वन ट्रेनर एंड वन को ट्रेनर फॉर ऑल योर लैब, या जो भी तुम्हारे डाउट्स है उस सब चीजों के लिए. एंड पीयर्स में कौन आएगा? विल बी इन पीयर्स. यस,
कौन? तुम लोग, तुम्हारे दोस्त लोग ना सब, वो भी सपोर्ट है ना एक। मतलब कुछ डाउट्स टीचर से नहीं पूछ पा रहे हो, फ्रेंड से डिस्कस करोगे ना, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट? यू आर इन व्हाट्सएप ग्रुप, दोस्त लोग है ना तुम्हें वहां पे। तो दैट इज द पार्ट, सो दैट कम्स अंडर अ टीम। तो टीम में few things you will miss on YouTube, that is mentors, peers, वन टू वन कनेक्टिविटी नहीं है ना। यहाँ पे हम जो बोल रहे हैं बार बार कि कंटेंट तुम्हें बहुत पूरी दुनिया भर में और अच्छा मिल जाएगा कहीं पे, राइट? बट जो वन टू वन कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम, पर्सनल अटेंशन की बात कर रहे हैं, वो तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगा। सो दिस इज 12.5%। जो हम 100% की बात कर रहे हैं, तो 12.5% हम प्रोवाइड कर रही है। देन व्हाट विल बी इन स्ट्रेटजी? इन स्ट्रेटजी इज, फर्स्ट इज जीरो ट्रस्ट ऑन स्टूडेंट। प्रीवियसली होता था कि वी वर कंडक्टिंग लेक्चर्स, देन लैब लेते थे, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि स्टूडेंट्स ने करना चाहिए असाइनमेंट वगैरह सब पार्ट। बट अभी वी हैव स्टार्टेड कि लेक्चर होगा, साथ ही साथ 10 में से कम 5, 6, 7 क्वेश्चंस तो उन्होंने क्लास में ही करने चाहिए, ठीक है? अभी जब तुम्हारा एकदम मेन टॉपिक स्टार्ट होंगे, अभी तो बेसिक इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट चल रहा है, पर फिर भी जैसे हमने इफेल्स वगैरह पढ़ा उस दिन, तो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं क्लास में, सो लेक्चर प्लस लैब इस तरीके से जाएगा। रिवीजन वाला पार्ट होगा। टीचिंग स्ट्रेटेजी तो तुमको पता है, हर चीज का क्या क्लियर होना चाहिए, वाई, तभी जाके क्या समझेगा, हाउ। व्हाट तो तुम्हें पता होता है, व्हाट पहले से ही पता है तुम्हें, राइट? व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग सबको पता है, डेवलप बाय डेनिस रिची वगैरह वगैरह। वाई सी प्रोग्रामिंग पूछा या वाई पाइथन पूछा तो तुम्हें प्रॉब्लम आती है। वाई क्लियर है तो हाउ समझ में आ जाता है, क्लियर? सो दैट इज आवर स्ट्रेटजी। देन सीक्वेंस मैटर, सीक्वेंस मैटर करती है। ये तो मैंने तुम्हें टोकन्स में ही एक्सप्लेन किया कि डेटा टाइप पहले पढ़ा दूंगा, बाद में कीवर्ड पढ़ाऊंगा, गलत है, क्योंकि डेटा टाइप कीवर्ड है ना, पहले कीवर्ड आनी चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट। तो सीक्वेंस है हर एक पार्ट का। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे हम बहुत प्राउडली बात करते हैं, दैट इज ट्रांसपेरेंसी। कि ट्रांसपेरेंसी, तुम बताओ तुम्हें किस लेवल का ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और हम ये हर एक रोज इंप्रूव किए जा रहे हैं। और इसको इंप्रूव करने के लिए हमें बहुत बड़ा सपोर्ट है कुछ इन्फ्लुएंसर्स का, जो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे रील बनाते हैं, क्योंकि कैमरा सस्ते हो गए, ठीक है? तो रिसेंटली एक एग्जांपल देता हूँ ट्रांसपेरेंसी का, कि समवन हैज क्रिएटेड वन वीडियो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स, मतलब हमारे यहाँ पे रूल मैम ने बताया होगा तुम्हें कि मॉक क्लियर करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए। तो उनका कहना है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स ये रूल रख के बच्चों के जानबूझ के मॉक ही क्लियर नहीं करते। सो वैलिड रीजन है, करते भी होंगे कुछ लोग, राइट? तो हम वो कुछ लोग कौन है क्या है वो सब नहीं सोचते बैठते, या उधर एक्सप्लेन नहीं करते बैठेंगे कि हम नहीं करते, ट्रस्ट अस। तो ट्रस्ट वाला पार्ट नहीं, पार्ट क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट होना चाहिए ना, राइट? ट्रस्ट तुम्हें रखना है नहीं रखना है वो वाला पार्ट नहीं है, हम हमारी तरफ से क्या ट्रांसपेरेंसी देते हैं। सो वी विल बी रिकॉर्डिंग ऑल योर मॉक्स। जो भी मॉक होंगे वो सारे मॉक क्या होंगे, रिकॉर्ड होंगे। मतलब अभी इन दोनों को लगता है कि मेरा मॉक जानबूझ के क्लियर नहीं किया, तो वो क्या कर सकता है, वो रिकॉर्डिंग डाल सकता है इंस्टाग्राम पे कि ये ऐसे कैसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज एरे पूछ रहे हैं हमको, ऐसा तो नहीं करना चाहिए इन्होंने। फिर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज एरे पूछा है मुझसे, तो ये नहीं होना चाहिए ना, अन्याय होगा ना उसके साथ कि मैंने इसको व्हाट इज एरे पूछ लिया, ठीक है? इसको पूछा कि भाई लिंक लिस्ट वगैरह एक्सप्लेन कर डिटेल में, कैसा है क्या है फ्लो बता, इसको बस डेफिनेशन पूछा, तो उसके लिए वो शायद डिफिकल्ट है, तो वो नहीं जज करेगा ना। ये बाजू वाला जब इंस्टाग्राम पे वो वीडियो डालेगा तो बाजू वाला बोलेगा कि, बाजू वाला उसको कमेंट में बताएगा कि हाँ ये सच में कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, सच में वो लोग स्कैम कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग डिसाइड करेंगे ना इसमें। तो सार्काज्म की बात अलग, बट ये क्लियरिटी है क्या सबको? क्यों बोल रहा हूँ ये
क्योंकि कोर्स शुरू होने से पहले ही बहुत से लोगों के माइंड में वो चलते रहता है कि हमारे साथ ऐसा होगा क्या, मतलब पढ़ाई रह जाती है बाजू में, यही चल रहा है ओवर थिंकिंग तुम्हारा कि नहीं मैं एफर्ट्स तो ले रहा हूँ लेकिन लास्ट में इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया तो क्या, तो वो पढ़ाई पे अफेक्ट कर रहा है ना तुम्हारे। तो क्या होना चाहिए इसके पहले, इसके पहले ही वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दे आर रिकॉर्डिंग ऑल मॉक्स। तुमने मॉक रिकॉर्ड किए थे ऐसा तुमने बोला, इसका क्या प्रूफ है कि हम मॉक रिकॉर्ड करेंगे, बाद में तो तुमने नहीं किए तो इसका प्रूफ ये रिकॉर्डिंग है अभी की रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे जा रही है ना, उसको तो क्रॉप कर सकते हो ना तुम लोग। तो दैट इज माई पार्ट कि दैट ट्रांसपेरेंसी शुड बी देयर। अभी जैसे मैम ने बोला होगा तुम्हें कुछ चीजों का कि ऐसे ऐसे होगा, कुछ बच्चों को डाउट आता है कि हमें रिजेक्ट किया गया कुछ कंपनीज में कि हमने क्वेश्चंस के सारे सवालों के जवाब तो करेक्ट दिए थे, बट देयर माइट बी सम चीजें कि उनको उससे कोई बेटर मिल गया है जिसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, जिसका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो वो फीडबैक देंगे ना। तो फीडबैक देंगे तो हम यहाँ तक ट्रांसपेरेंसी दे रहे हैं। यू कैन ज्वाइन प्लेसमेंट विंडो, दे विल शेयर देयर स्क्रीन, दे कैन शो यू दैट मेल कि देखो भाई ये कंपनी की तरफ से ये आया है। तो यही मतलब इन सारी चीजों में वो जो मैम ने बोला कि हम जाके अभी कंपनी वेरीफाई कर रहे हैं वगैरह, तो इन सब चीजों से हम सीखे। ऑब्वियस सी बात है पहले हमारे कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ भी होगा, क्योंकि हम कंपनी जा रहे हैं तो वेरिफिकेशन नहीं किया लेट से, तो क्या पता वो कंपनी वहां पे स्कैम है या फ्रॉड है, तो हम एक एक स्टेप ले रहे हैं उसके लिए। तो ऑल दिस थिंग्स कम अंडर ट्रांसपेरेंसी। तो तुम्हें और क्या क्लियरिटी है, आप क्वेश्चन पूछो मुझे कि सर ये वाला ट्रांसपेरेंसी है क्या, आपका सैलरी कितना है इस ऑर्गेनाइजेशन में, कितना कमाते हो तुम लोग साल भर का, तुम्हाला परवडतं का, तुमचं बाहेर कुठे काय आहे का? यस, हाँ, व्हाट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी यू वांट, तो मैं बताऊंगा उसमें कि ये मैं नहीं बता सकता। तो पर ये कब बता रहा हूं, रिफंड डेट से पहले की सरांचं बाहेर काय आहे का ते सांगत नाही ना, मला ऍडमिशनच नाही घ्यायचं, मग नको घेऊ। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है वो। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि पूछो कि सर ये पता चलेगा क्या, ये बताओगे क्या, उसका आंसर मैं क्या करूंगा, यस या नो करूंगा ना। तो नो आंसर किया तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है, रोल बैक करना, रिफंड लेना कि नहीं यार ये आंसर ये ट्रांसपेरेंसी मुझे चाहिए थी, इन्होंने नहीं दिए। बट ये क्वेश्चन करो, आई एम सीरियस अबाउट दिस। क्यों करो बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा कहना क्या होता है, आज ये टीएसएससी हो गया, कल परसों विनायक सर का समन्वय वाला सेशन हो गया, ऑल तुम्हारे डाउट्स क्लियर होने के बाद फोकस शुड बी ऑन पढ़ाई एंड पढ़ाई। फिर ये सब कचरा इधर उधर के थॉट्स नहीं आने चाहिए कि ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, वैसा करोगे क्या, कोई रूल्स टर्म्स एंड कंडीशंस है क्या, ऐसे छोटे अक्षरों में तुमने लिखा है क्या कहीं पे स्टार बोल के और हमसे टिक करवा लिया है क्या, तो नहीं, छोटे अक्षरों में नहीं है, बड़े अक्षरों में पूछ रहा हूँ कि व्हाट ट्रांसपेरेंसी यू नीड ऑनलाइन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, सब लोग, अरे यस और नो, ये तो है, ये हुआ बाहर का ट्रांसपेरेंसी वाला बात। चलो आगे तुम्हें क्या है क्वेश्चन और कि ये होगा क्या, वो होगा क्या, तो वो पूछो। बाकी ज्ञान सेतु वाला पार्ट करूंगा, क्या रिवीजन सेशंस वगैरह वाला पार्ट करूंगा डिस्कस, तो उसमें तो क्लियरिटी आ ही जाएगी। तुम स्वप्न पूर्ति वाला जो पार्ट है वो एक्सप्लेन करूंगा, बट इसमें बाहर से कुछ तुम्हें चाहिए क्या, और क्योंकि तुम इन्फ्लुएंस बहुत लेवल पे हो आज के जमाने में, क्योंकि तुम कहीं ना कुछ सुन के आते हो, तो अच्छी बात है। हमें तो उल्टा वही स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि कोई एक वीडियो बनाता है, हम एक प्रोसेस बनाते हैं, सिंपल है कि ट्रांसपेरेंसी देनी चाहिए। तो दैट विल कम अंडर अवर स्ट्रैटेजी वाला पार्ट, ठीक है, दैट इज 12.5। देन इन सिस्टम, सिस्टम में असाइनमेंट्स है,
डेली रूटीन शेड्यूल वगैरह तुम्हारे ग्रुप पे आना चालू हो गया होगा ना, राइट? टाइम टेबल है, इवन रोड मैप्स है कि कोर्स कहाँ से चालू होगा, कहाँ से खत्म होगा। तो अराउंड हमने 6 क्या 6 साढ़े 6 मंथ बोला है। अब समटाइम्स क्या होता है, लास्ट टाइम किसी ने इसी सेशन में पूछा था कि लास्ट किसी एक बैच का तो 8 महीने चला। तो ओवरऑल हमने सर्च करने के बाद हमें पता चला कि उस बैच को ही कुछ रिवीजन नीडेड, मतलब उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था कि हमें ये पार्ट रिपीट करोगे। तो पूरे स्टूडेंट मिलके अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रिपीट। हमें कोई जल्दी नहीं है कि कोर्स कंप्लीट करके ही खत्म करवा देना है सारा, राइट? खींचना कब बोलते हैं कि टीचर बोलता है मैं 4 दिन नहीं हूँ, 5 दिन नहीं हूँ, राइट? 5 दिन छुट्टी या 4 दिन छुट्टी, इसको खींचना बोलते हैं। हम अगर तुम्हें पढ़ा रहे हैं रोज ईच एंड एवरी डे कुछ ना कुछ वर्क, तो यू शुड ऑल्सो हैव दैट पेशेंस कि हाँ भाई ये 5-6 दिन से क्या फर्क पड़ने वाला है ना। बट एक प्रॉपर रोड मैप तुम्हें मिलने से क्या होता है, हमें भी वो क्लियरिटी रहती है कि हमने बच्चों को बताया है ये 6 महीने में होगा, तो हम इसको 10 महीने नहीं कर सकते ना, क्योंकि तुम्हारा वो भी डर लगा होता है। बहुत से लोगों का मैनेजमेंट है, किसी को रूम रेंट का चिंता होती है, बहुत सी चीजें है ना, तो हमें पता है वो सब चीज, तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव अरेंज ऑल दैट पार्ट। बट स्टिल कंप्लीशन का तुम लोगों पे होगा, तुम लोगों ने असाइनमेंट्स किए, तुम लोगों ने काम किया टाइम पे, तो तुम लोग अगर उसको खींच रहे हो, हाँ बट सर उसमें से एक ही स्टूडेंट ऐसे कर रहा है, तो फिर उसमें बैच नहीं, बैच को हम कंटिन्यू करेंगे। एक स्टूडेंट को बोलेंगे भाई तू रिवीजन सेशन के लिए बैठना, उसके लिए पूरे बैच को वी विल नॉट डिस्टर्ब। बट ये समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग ऑल दिस ट्रांसपेरेंसी पार्ट? दिस इज द सीपीआर। इसमें होगा कि पहले तो तुम्हें वो सीआरएम से कभी तुम डिस्कस किए होंगे, तो एक वाउचर क्या ब्राउचर मिला होगा, उसमें वो सारे कितने टॉपिक्स हम कवर करेंगे क्या करेंगे वो है। उसके अलावा भी ये एक सीपीआर है तुम्हारे बैचेस का कि उसमें क्या क्या टॉपिक कब कब कवर होंगे। और एक कोई तो भी लेट से पाइथन बैच को मैं जाऊंगा या मेरे बैच को रंजिता आएगा या कोई भी, मतलब जो उस बैच को पढ़ाता नहीं है, वो आके वेरीफाई करेगा कि इतने इतने टॉपिक कवर हुए है क्या। समझ में आ रहा है? देन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट मतलब ये वाला इन्वायरमेंट प्लस ऑनलाइन में एक पार्ट आता है। अब ऑनलाइन वाले बोलेंगे हमको ये इन्वायरमेंट कैसे, तो हमारा सिंपली कहना क्या है, उन्हीं लोगों ने ऑनलाइन कंटिन्यू करना चाहिए जिनके पास इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मतलब क्या, कि उनके पास एक प्रॉपर स्पेस है, उन्होंने उनके गांव में ही सही बट एक लाइब्रेरी लगाया है, या घर पे उनका कोई पर्सनल रूम है, राइट, जहां पे उनको डिस्टर्बेंस नहीं है। दैट इन्वायरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्या तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो ही तुमने ऑनलाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पे मेरा कंट्रोल बस एक ही चीज का नहीं है कि जब मैं उनको बोलता हूँ स्क्रीन शेयर करो, जब मैं बोलता हूँ कि डाउट्स पूछो कमेंट्स में डालो, तो स्क्रीन शेयर करने जब मैं बोलता हूँ तभी उनके घर पे पावर कट हो जाता है, या तभी उधर कुछ जोर की बारिश होती है, या भूकंप आता है, ये सब प्रॉब्लम। क्लियर? तो वही एक डिफरेंस है। यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन विजिट इंस्टीट्यूट, इवन दे कैन विजिट ऑन सैटरडेज एज वेल, अगर उनको ऑफलाइन में कोई 1-to-1 डाउट सॉल्व करवा के लेना है तो। ओनली डिफरेंस इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इज दैट ऑफलाइन में वी आर प्रोवाइडिंग इंफ्रा, ये जो इधर लाइट है, एसी है, स्क्रीन है, ये सब चीजें है, तो दैट्स वाई तुम्हारी चीज थोड़ी ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑनलाइन। बट हम उल्टा बोलते हैं कि बहुत से लोग अगर सेल्फ डिसिप्लिन है, कि वो अगर बोलते हैं कि नहीं मैं खुद से खुद का कर लूंगा, मैं खुद डाउट रेस करूंगा, पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ऑफलाइन में मैं आके देख सकता हूँ किसी के लैपटॉप में कितना किया क्या किया, राइट। ऑनलाइन में वो प्रॉब्लम है, ऑनलाइन में मुझे चिल्लाना पड़ता है कि भाई स्क्रीन शेयर कर, शेयर कर। अंडरस्टूड? दैट इज द ओनली डिफरेंस, देयर इज नो अदर डिफरेंस। बाकी तो ग्रुप भी एक ही है ना तुम्हारा, तो डिफरेंस का सवाल ही नहीं आता है। ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स देखा जाए तो सारे एक ही ग्रुप में है ना। यस, इवन मॉक के लिए ऑफलाइन आके अगर देना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, तो तुम ऑफलाइन आके दे सकते हो, और ऑफलाइन आके ही देना चाहिए तुम्हें, ऐसा हम बोलते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल कंपनी में तो तुम ऑफलाइन ही जाने वाले हो ना, तो वो प्रैक्टिस कैसे आएगी तुम। तो यस, इन्वायरमेंट है, हार्ट ऑफ द सिटी, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। मतलब अगर तुम इस साइड की बात करो, उस साइड की बात करो तो नहीं है, ठीक है।
ज्ञानेश्वर पादुका चौकातल्या कुठल्या उजव्या बाजूची जर गोष्ट कराल, डाव्या बाजूला नाही जायचं. ठीक है, जब तक क्लास चल रहा है मत जाओ. ठीक है, जॉब वॉब लगने के बाद. सो दिस इज 12.5. तो ये हुआ हमारा प्लानिंग का पार्ट. अब एग्जीक्यूशन का पार्ट, एक्सपीरियंस ट्रेनर्स. तो ये क्वेश्चन पे हर बार, तो मुझे अगर कोई क्वेश्चन करता है अभी कि सर आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप तो बहुत छोटे दिख रहे हो अभी, ऐसा है ना. मतलब कल को कोई एक ट्रेनर आता है जिनके बाल सफेद है, एज ज्यादा है, क्या लगता है तुम्हें इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा कि दिक्कत है ना, ट्रेनर एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि वो 2019 पास आउट है, अभी चल 26 रहा है, क्या ही इनका 5 ही साल का एक्सपीरियंस है, राइट. और ये हमको सी पढ़ाएंगे, हमको पाइथन पढ़ाएंगे. सेम रंजित सर का भी वही है, हम सेम ही बैच के हैं दोनों. तो क्या करोगे, तो कैसे डिसाइड करोगे ना. तो उसके लिए क्या है, उसी के लिए तो डेमो है ना. 15 to 20 डेज डेमो लेक्चर्स है, उसमें समझ में आएगा ना तुम्हें एक्सपीरियंस किस पे मैटर करेगा. कि मैंने इस सर को एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर उनको नहीं आया, या वो बोले कि मैं ढूंढ के बताता हूँ, ऐसे ऐसे हुआ कुछ, तो तुमने ये करना चाहिए ना. नहीं नहीं, उनका एज ही नहीं है ज्यादा, ये क्या बात हुई जजमेंट वाली. सो दैट इज द पार्ट. यहाँ का पार्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, कहीं का भी पार्ट बोल रहा हूँ. यू शुड रिस्पेक्ट नॉलेज, राइट. एज का पार्ट नहीं होता है उसमें. ये होता है क्योंकि वो कभी कभी आता है, मतलब कुछ कुछ जगह पे तुम सुनते हो कि आज एक बहुत सीनियर सर आ रहे हैं जिनका 50 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं समझा पाए तुमको तो कैसा. तो यू आर गोइंग टू अटेंड, क्या वो फीस, मतलब क्या फी पे करके कोर्स स्टार्ट कर दोगे तुम लोग, क्यों, क्योंकि 50 साल का एक्सपीरियंस है. क्या करोगे फिर, डेमो अटेंड करोगे ना 15-20 दिन. क्या भाई समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे इनका समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो रोल बैक. रिविजन सेशन ऑन योर रिक्वेस्ट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज मेमोरी डायग्राम. वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, और ये तुम्हें कहीं पे नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ. मिला भी तो इतना डेप्थ में नहीं मिलेगा जितना हम डेप्थ में जाते हैं, और बहुत हेल्प करता है. यू कैन आस्क अवर प्रीवियस स्टूडेंट, आज जो भी वो काम कर रहे हैं, मेमोरी डायग्राम की वजह से उनको बहुत लेवल पे हेल्प होता है. एंड क्वालिटी ट्रेनिंग टी स्टाइल. तो टी स्टाइल मतलब क्या, कि कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स प्लस इन डेप्थ, ईच टॉपिक इन डेप्थ. क्लियर. So this will be 12.5. In your skills part, your soft skill session will be there, aptitude lab and interview preparations. मतलब जो मॉक वगैरह वाला पार्ट हम बोल रहे हैं वो, that is 12.5. Now the part of support, तो जो बढ़ता ही जा रहा है उसको में भी हमें अभी 1-2 पीपीटी और लगेगा कुछ दिनों में, क्योंकि दिस इज नॉट अपडेटेड. तो इसमें recently we have launched ज्ञान सेतु, स्वप्न पूर्ति, अभी मैम ने बात किया, दैट इज आधार शक्ति, नैपुण्य. नैपुण्य इज योर लाइव प्रोजेक्ट, जो इंटर्नशिप वाला पार्ट हम दे रहे हैं, दैट इज नैपुण्य. प्लस रिवीजन सेशंस के लिए तुम आके बैठ सकते हो, कोई भी बैच के किसी भी रिवीजन सेशन को आके बैठ सकते हो. तो आई विल गो 1 by 1. डेमो का क्लियरिटी है तुम्हें कि डेमो के वजह से मुझे कुछ कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती या कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती. डेमो है, अटेंड करो, उसी में तुम डिसीजन लो तुम्हें समझ में आता है या नहीं. नहीं समझ में आता है तो वी आर गिविंग रिफंड पार्ट एज वेल, राइट. तुम्हें गिटहब की लिंक का भी मैंने बताया है, राइट. आगे चल के प्लेसमेंट मीटिंग होंगे तो स्वप्नाली मैम तुम्हें लिंक्डइन अकाउंट वगैरह का भी पूरा गाइडेंस देंगे. देयर इज वन ग्रुप कॉल्ड एज सुपरबिट,
वो हमारी एल्यूमिनाई की कम्युनिटी है पूरी, कि प्लेस होने के बाद वहां पे सारे स्टूडेंट्स ऐड होते हैं। तो इवन आफ्टर प्लेसमेंट कुछ साल बाद तुम्हें स्विच करना है, या तुम्हें कोई कंपनी में जाने के बाद नया काम मिल गया जिसमें तुम्हें हेल्प चाहिए किसी की, तो सारे स्टूडेंट्स है और एवरीवन इज कोऑपरेटिव देयर, क्योंकि जिस कल्चर से वो गए हैं 6-7 महीने में, तो सब लोग हेल्प करते ही एक दूसरे की। तो वो ग्रुप है। रिकॉर्डिंग्स यू आर गेटिंग, जो भी पढ़ाया जाएगा उसके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे, मतलब अभी जो लाइव लेक्चर हो रहा है उसी का रिकॉर्डिंग मिलेगा। देन प्लेसमेंट वाला पार्ट मैम ने समझाया अभी, लाइव प्रोजेक्ट वाला पार्ट जो है, देन कुछ रिकॉर्डिंग्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट दोज आर इन LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में, जैसे कि डे ऑफ्स होगा, गिटहब होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, C++ अगर तुम्हें पढ़ना है तो, ठीक है, वो सारा पार्ट LMS में अवेलेबल है। रिज्यूम बिल्डिंग, ओपन कैंपस ड्राइव्स। अब ज्ञान सेतु जो है, एवरी वीक तुम्हारा ज्ञान सेतु रहेगा, अभी स्टार्ट भी हो गया होगा ना तुम्हारा, राइट? तो उसमें रिवीजन, डाउट सॉल्विंग, हैकर रैंक या लीड कोड, मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन जो आते हैं वो सारा डिस्कशन, प्लस एक दिन ग्रुप डिस्कशन होगा, राइट? तो वो सब पार्ट हम ज्ञान सेतु के अंडर कवर कर लेते हैं। प्लस अपार्ट फ्रॉम दिस, तुम्हें किसी भी लेवल का सपोर्ट चाहिए, मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे सबके सामने स्क्रीन नहीं शेयर करनी है, या मुझे ज्ञान सेतु में भी उधर 10 लोग हैं, मुझे नहीं वहां पे डाउट पूछना है, तो तुम ट्रेनर्स को 1-to-1 पिंग कर सकते हो, ठीक है? कभी भी पिंग करो, कभी कभार चाहिए तो वो एक गूगल मीट का लिंक भेज के तुम्हें कनेक्ट करवा लेंगे, तुम्हारा डाउट सॉल्व करवा लेंगे। ओनली वन थिंग वी नीड फ्रॉम यू पीपल इज कि प्रोएक्टिवली तुमने ये रेज करना है। तुम जब तक रेज नहीं करोगे हम हेल्प नहीं कर पाएंगे उसमें। हम हेल्प कर पाते हैं फिर मॉक के दिन, 10-15 दिन चले जाते हैं जब हम मॉक लेते हैं, इसलिए मॉक का भी हमने टाइमलाइन वो 10-10, 15-15 दिन के बाद रखा है, ताकि ट्रैक पे हो या नहीं तुम ये समझ में आता है। अब्सेंट स्टूडेंट है तो हम कॉल करते हैं, अटेंडेंस कम है तो हम कॉल करते हैं, राइट? 1 महीने से ही नहीं आया तो हम पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं। तो तुम पेरेंट्स को कॉल करोगे क्या? करेंगे, ठीक है? नहीं, पर मुझे नहीं जाने देना है पेरेंट्स, तो तुम यहाँ से जाओ, ठीक है? कंटिन्यू ही मत करो आगे, ऐसा हमारा कहना है। स्ट्रिक्टनेस है तो स्ट्रिक्टनेस है कुछ चीजों में, बट स्ट्रिक्टनेस कैसा है, मतलब तुमने फॉलो करना चाहिए, कुछ चीज के रूल्स करने पड़ते हैं। कुछ लोग फिर वो एटलीस्ट क्या ऑफलाइन में है, कुछ लोग कि चेक होगा वगैरह ये सब बोल के थोड़ा सीरियस लेते हैं। ऑनलाइन वाले बोलते हैं ठीक है पावर कट बोल दूंगा कल, ठीक है, टेंशन नहीं है। या कल ही मैंने बोला है, तुम्हारे बैच को बोला क्या, जावा में एक बैच को बोला है शायद, कि ऑफलाइन के स्टूडेंट्स कुछ ऑनलाइन में, मतलब कल वो रोड बंद होने की वजह से सारे सेशन ऑनलाइन लिए ना, तो मैंने वही बोला स्टूडेंट्स को कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स का क्या प्रॉब्लम है, वो अभी घर पे है, तो उनको लगता है छोड़ो 6 महीने का 8 महीने भी हुआ तो क्या प्रॉब्लम है ना। ऑफलाइन वालों का ये है कि इधर आया है ना तो सारा उनका बजट प्लानिंग चालू होता है, उनको यहाँ पे रेंट देना पड़ता है, मेस के पैसे देने पड़ते हैं, तो उन्हें वो सीरियसनेस है। सीरियस मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट्स में कुछ ही 10% स्टूडेंट ऐसे नजर आते हैं जो सीरियसली कुछ कमेंट करे या पूछ रहे, अदर स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट वेरी कैजुअली। तो मेरा कहना होता है कि गाइडेंस तुम्हें मिल रहा है तो तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि जब तक एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी आके नहीं मतलब गिरती है मेरे ऊपर, राइट? जोपर्यंत काय शब्द आहे त्याला चांगला, बट असो आता वापरत रेकॉर्डिंग चालली आहे, ठीक है? तो दैट इज ओनली द डिफरेंस, ठीक है? तो 1-to-1 अटेंशन दे रहे हैं हम, फिर भी ऑनलाइन वाले भी बाद में मैसेज करके वो सॉल्व कर सकते हैं। स्वप्न पूर्ति वाला पार्ट क्यों लॉन्च करना पड़ा अभी रिसेंटली, क्योंकि हुआ यह है कि पहले जो था, पहले कुछ इस तरीके से था कि फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब अलग, बैक एंड डेवलपर की जॉब अलग, फिर टेस्टर की जॉब अलग। बट अभी हुआ यह है कि एआई आने की वजह से काम जो है, मतलब कोड वगैरह के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ रहा है ना, थोड़ा टाइम लग रहा है डिबगिंग के लिए या टेस्टिंग के लिए, बट व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि फिर फ्रंट एंड बैक एंड टेस्टिंग सारा ही काम एक बंदे ने ही करना चाहिए। प्लस जावा, पाइथन, ये सारे टेक्नोलॉजीज ये भी सारे उस बंदे को आने चाहिए। मतलब तुम ही देखो ओवरऑल अभी मार्केट सिनारियो तो तुम्हें पता है कि किस लेवल का चल रहा है।
तो हो ऐसे रहा था कि जावा के कुछ स्टूडेंट्स फिर पाइथन में जाना चाहते हैं तो वो बाहर से अपग्रेड कर रहे थे, या पाइथन के कुछ जावा में आना चाहते हैं तो वो बाहर से अपग्रेड कर रहे थे। तो सिंपली वी हैव प्रोवाइडेड सेम फी स्ट्रक्चर में, सिंपली जो भी हमारा पाइथन का कोर्स था दैट वी आर प्रोवाइडिंग, मतलब जावा के स्टूडेंट को पाइथन का कोर्स मिलेगा, पाइथन के स्टूडेंट को जावा का कोर्स मिलेगा। वो तुम कर सकते हो, रिकॉर्डिंग से कर सकते हो या लाइव अटेंड करके भी कर सकते हो। सो दैट कम्स अंडर स्वप्न पूर्ति वाला पार्ट। ठीक है, आधार शक्ति तो मैम ने अभी एक्सप्लेन किया है, इंटर्नशिप है। और तुम्हें क्या लगता है कि और ये डाउट सॉल्व होगा क्या? तुम क्वेश्चंस करो, ये सपोर्ट हमें मिलेगा क्या, ऐसे होगा क्या, वैसे होगा क्या, वो पूछो। यस, क्वेश्चंस आने चाहिए। सपोर्ट में तुम्हें और कुछ चीज चाहिए क्या? तो यहां तक क्लियर है। ये है तुम्हारा 12.5, कितना हुआ? सो अब तुम्हें समझेगा फ्रेमवर्क का मतलब। टी एस एस टी, सो टी फॉर टीम, देन स्ट्रेटजी, देन सिस्टम, देन environment, then again T for training, S for skills, S for support। ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूशन वाला है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन। एंड अब इतना जो पार्ट हुआ है दैट इज 87.5। अगर हम इसको 100 में डिवाइड किए हैं तो इतना सब पार्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है तुम्हें? हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना। मतलब दिस इज कॉमन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। हर स्टूडेंट को ये कॉमन है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं है। हर एक स्टूडेंट को इसमें से जो भी चाहिए उसको इक्वल मिल रहा है। वो अगर आता है उसमें से जो मांगता है वो उसको मिल रहा है। अंडरस्टूड? वेरी क्या कर रहा है? सिर्फ ई, राइट। और वो ई हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ई तुम्हारा पार्ट है। जैसे कि फ्रेमवर्क तुम्हें क्या प्रोवाइड कर रहा है? सारा इकोसिस्टम कि सारे अनोटेशन, सारे प्री कॉन्फ़िगर किए हुए चीजें, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे कोड पे फोकस करना है ना। और वो सारे कॉन्फ़िगरेशन सारे ही प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है? सेम है, राइट। बदलेगा क्या? तुम्हारा लॉजिक बदलेगा, तुम्हारा कोड बदलेगा, तुम किसमें से कितना यूज कर रहे हो वो पार्ट होगा, राइट। तो जो मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं, राइट, तो यूट्यूब पे ऑल दिस थिंग्स क्या करने पड़ रहे हैं तुम्हें? खुद एक्सप्लोर करने पड़ रहे, राइट। सो फ्रेमवर्क का एडवांटेज क्या है कि फ्रेमवर्क तुम्हें ये प्रोवाइड कर रहा है, तुम्हें किस पे फोकस करना है? सिर्फ वो ई पे, एंड दैट ई इज एफर्ट्स। सो दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। बट उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वो इतना सिंपल है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस अटेंडेंस मेंटेन रखनी है, पंक्चुअलिटी, मॉक क्लियर करने हैं, और हम जो दे रहे हैं उतने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। फिर अगर तुम इतना भी नहीं करने को रेडी हो तो मैंने बोला है यू शुड टेक रिफंड, राइट। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब तुम यूट्यूब की बात करते हो तो तुम्हें एफर्ट के साथ साथ वो भी पार्ट करना पड़ता है। तो यूट्यूब तुम्हें क्या दे रहा है? सिर्फ ट्रेनिंग। मतलब जो 12.5% है वो तुम्हें यूट्यूब दे रहा है, बाकी का 87.5 क्या करना पड़ रहा है? तुम्हें करना पड़ रहा है एक्सप्लोर। यहाँ पे 87.5 कौन कर रहा है? हम। नंबर्स में बताओ तो थोड़ा समझ में आता है अच्छे से। और तुम्हें कितना करना है सिर्फ। सो दैट इज एडवांटेज ऑफ फ्रेमवर्क। तो इसीलिए यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बिट, या नॉट यूट्यूब वर्सेस फर्स्ट बिट, जो भी इंस्टीट्यूट तुम्हें टीएसएससी देता है या इतनी कम फीस में देता है, अगेन तो यू शुड गो देयर, ऐसा मेरा कहना है सिंपली। आर यू गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? So this is that part. And I hope ये फ्रेमवर्क वाले सिनारियो से
तुम्हें ये क्लियर है? तुम्हें क्या करना है, सिर्फ यू हैव टू फोकस ऑन एफर्ट्स। रिमेनिंग पूरा पार्ट तुम्हें TSSC से मिलेगा, तुम्हें बस वो एफर्ट लेने हैं। अब इसके अलावा और कोई डाउट है? और कोई डाउट है तो वो पूछो। तुम्हें अगर हेजिटेशन है कि मैं सबके सामने नहीं पूछ सकता, तो 1-to-1 में बात करो, क्लास होने के बाद डिस्कस करो, या घर पे जाके मैसेज करो कि ऐसा ऐसा है, व्हाट्सएप करो तुम, हम रिप्लाई करते हैं। आई थिंक कल परसों ही मुझे पूछा था किसी ने, कल ही पूछा था किसी ने डाउट। तो तुम लोगों पे हो कि तुम लोग कितना रेस करते हो। अब क्वेश्चन है कोई तो बोलो। क्वेश्चन? अरे कुछ तो क्वेश्चन होना चाहिए ना। फिर ये सॉर्टेड है, PPT से सर सॉर्टेड है, मैं लाऊं क्या PPT बना के कल? फिर एक ही पार्ट है जो मैं PPT से पढ़ाता हूँ बस, दैट इज TSS। उसके बाद मैं PPT नहीं लगाऊंगा। तो क्या लगता है तुम्हें, लगानी चाहिए क्या PPT? तो नहीं लगानी चाहिए, नहीं क्यों? पहले पढ़ाना चाहिए ना, पूरा बोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी मैं सुना हूँ कुछ कॉलेजेस में वो बोर्ड ही हटा दिए हैं, सीधा प्रोजेक्टर और रिमोट से ही चला है, और टीचर ऐसे बस बताता है ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। अब मैं तो सरप्राइज हूँ थोड़ा सा, मतलब उसके हाथ में पेन ही नहीं है तो टीचर किस बात का हो फिर, अगर लिख नहीं रहा है कुछ तो। स्क्रोल ही करना है तो फिर उधर वॉचमैन को भी बुला सकते हैं ना कि भाई एक एक PPT ये कर। जॉब खतरे में लग रही है मुझको, मतलब यहाँ पे हूँ तब तक तो नहीं, और यहाँ पे ही हूँ लाइफ टाइम वो भी। सो यस, आई एम नॉट ओनली जावा ट्रेनर, आई एम ट्रेनिंग टीम लीड एट पर्सिस्ट सॉल्यूशन। तो पूरा ट्रेनिंग का पार्ट मैं ये देखता हूँ। तो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, यू कैन रीच आउट टू मी, यू कैन आस्क मी कि सर ऐसा ऐसा है। हम सारी चीजों में हेल्प करेंगे। इवन आगे चल के समन्वय के सेशंस में हम लाइफ के प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। कभी मैं 1-2 सेशंस लूंगा, उस पर हम मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे, ठीक है? बट अभी पहले तुम स्टेबल हो जाओ, ये इस पे काम करना स्टार्ट कर, ठीक है? तो जो भी है, किसी को अगर डिप्रेशन आया है तो हम उसको बताएंगे कि भाई वो डिप्रेशन नहीं होता है, वो टेंशन होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, वो 2 दिन की बात है, वो चला जाएगा। उसे डिप्रेशन जैसा बड़ा बड़ा नाम मत दो, या सच में किसी को हो सकता है, उसके भी बात करेंगे। तो मल्टीपल थिंग्स। हमारा कहना नहीं, असाइनमेंट नोटबुक पे नहीं सॉल्व करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है कंप्यूटर पे, और नोटबुक पे क्या करना है, मेमोरी डायग्राम निकालने, राइट? मेमोरी डायग्राम निकालने। हाँ, अल्गोरिदम है फर्स्ट असाइनमेंट में, तो अल्गोरिदम ऑब्वियसली पेन पेपर पे लिखना है, मतलब वही बात हुई ना, मेमोरी डायग्राम। अल्गोरिदम मतलब क्या है अपना, सिंपली मेमोरी डायग्राम ही है ना। तो आगे चल के जो असाइनमेंट्स रहेंगे वो सारे तुम क्या करो, गिटहब पे अपलोड करते जाओ। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी डाउट? इसके अलावा कोई डाउट है क्या? वापस वापस इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि रिफंड डेट जाने से पहले मुझे ये क्लियरिटी चाहिए होती है सब लोगों से कि भाई तुम्हें ये सब समझ में आया क्या, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाता हूँ फिर। वापस समझो, और मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया है, इट्स नॉट अबाउट 6 मंथ। ये फिर कितने साल का है? ये 2 साल का डिस्टर्बेंस है तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम मजबूरी में ये कोर्स कर लिए तो फिर प्लेसमेंट के लिए और तुम्हें 6-7 महीने क्या करते हो, फिर 6-7 महीने इसमें जाते हैं कि अभी चेंज करूं, मतलब प्लान बी पे जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। और फिर वो जाने के बाद प्लान बी पे तुम्हें फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है कि मेरा 1.5 साल गया। समझ में आ रहा है? तो अभी से डिसीजन लो। मैं वापस तुम्हें वो बोलता हूँ कि नॉट नेसेसरी कि सबको कोडिंग आना ही चाहिए। तुम डिसाइड करो ये 15 दिन में कि सच में तुम कैपेबल हो क्या। एंड आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग अगेन कि ये नहीं कर सकते हो तो दूसरा कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो, राइट? प्रेशराइज हो कहीं पे, पेरेंट्स अगर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं, तो मैंने एक इंस्टा पे वीडियो डाला है लास्ट टाइम, कन्विंसिंग योर पेरेंट्स वाला। किसने देखा है? कितने कितने लोगों ने देखा है? देखा है?
ऐसे हैंड रेस करो ना, फिर उसमें क्या है। ओके, इतने लोगों ने देखा है। ऑनलाइन कितने लोगों ने देखा है? नहीं देखा है तो जाके देखो, ठीक है। फर्स्ट के पेज पे है या मेरे पेज पे जाके देखो कि पेरेंट्स को कन्विंस करना है तुम्हें, तो तुम्हें कमिट करना है खुद को कि आई एम रेडी टू टेक दैट एफर्ट्स। और यहाँ पे होने का एडवांटेज ये है कि एफर्ट्स पे फोकस करना थोड़ा सा इजी है, क्योंकि TSS हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका टेंशन तुम्हें नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम आया तो मैं कहाँ जाऊं, इसका टेंशन नहीं, वो पार्ट सॉर्टेड है। अंडरस्टूड? बस तुम्हें डिसाइड करना है कि मैं रेडी हूं क्या नहीं ये चीज पे काम करने के लिए। तो वो तो डिसीजन तुम खुद का, तो खुद को समझ में आता है ना, ये मला जमेल की नाही म्हणून। तो किसी के प्रेशर वगैरह में आके मत करो अगेन। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑनलाइन। एनी डाउट, क्वेश्चन है किसी को कुछ? कल तुम्हारा रेगुलर लेक्चर होगा, पाइथन एट 9 AM, जावा एट 10 AM, और फिर उसके अगले दिन होगा समन्वय, राइट। विनायक सर का सेशन होगा, वहां पे भी जो भी तुम्हें डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो सर वो सॉल्व करके देंगे। तुम बोलोगे सर ये क्या इतने सेशंस, तो हमारा वही कहना है कि रिफंड डेट से पहले ये होना चाहिए, क्योंकि आवर एम इज नॉट ओनली बिजनेस। तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस, तुम्हें एक प्रॉपर पाथ मिलना अभी जरूरी है। 6 महीने बाद फिर तुम खुद को भी कोसते हो और तुम हमको भी कोसते हो कि नहीं नहीं इन्होंने ही कुछ नहीं किया। तो हम हमसे जितना हो रहा है सारा बता रहे हैं रिफंड डेट से पहले। रिफंड का भी क्लियरिटी तुमको है, 200 रुपये प्रोसेसिंग फी आम्ही काटत नाही, ठीक है। सर तुमने वो डायरी दिया था, ज्ञानेश्वरी दिया था, वो भी तुम्हें ही रखो, ठीक है। एंड सीरियस अबाउट दिस, मतलब पता नहीं है बहुत से लेवल पे से कचरा आता है भाई। ये बाहर क्या चल रहा है ना, ये बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से हमें बहुत सफर करना पड़ता है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं कि मंगते डायरी वापस जा लग, अरे मतलब गलत है ये बहुत। शायद किया होता है कोई उनके साथ, इसलिए वो ऐसा भी उनके साथ या उनके दोस्त के साथ ऐसा किया होता है, करते हैं। मेरे से बैग वापस लिया था TCS वालों ने, कि वो जो बैग दिए देते हैं ना 2 साल पहले, वो किट बोल के बैग, एक माउस वगैरह वो सब, वो लास्ट में वापस लेते हैं। फिर मेरे को कोई तो भी एक ब्लिंकिट से मंगाना पड़ा, उनको उनका प्रोसेस टिक करवाना होता है, क्या उसने बैग वापस दिया। मैं तो भूल भी गया था बैग रखा कहाँ पे, क्योंकि वो रोज ले जाने लायक भी बैग नहीं था जो उन्होंने दिया। आई वॉज इन TCS फॉर 2 years, 2 साल पेरिनियल एज अ जावा डेवलपर, उनको बताया होगा, ठीक है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है TCS में होना, ठीक है। तुम्हारे लिए है अभी, तो प्रिपेयर करो अच्छे से। और कोई डाउट है तो रेस करो बिंदास, ठीक है। और कोई किसी चीज का डर है तुम्हें तो मिळणार हे सगळं झाल्यानंतर, तो परत काढायला चांगलं नाही वाटत ना म्हणून. वैसा है नहीं सर, अभी तो डायरी की बात की जाए, ठीक है, डायरी पर्यंत आम्ही जाऊ. Yes, online. That's it for today. If you don't have any doubt, किसी को अनम्यूट करके बात करनी है तो प्लीज रेज योर हैंड, मैं परमिशन देता हूँ. हाँ वो सॉफ्ट स्किल में होगा ना, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला पार्ट, इंग्लिश कम्युनिकेशन वाला पार्ट विल कवर इन सॉफ्ट स्किल. अगेन, yes.